Good morning, students. Now let's start with your next chapter of grammar. Fourth chapter is nouns gender. Means in nouns there is one more kind of noun, it's gender. Kind of gender. There are many kinds of gender. How many? Masculine, feminine, common and neuter. Four types of gender. Like gender, what is gender? See what is gender. Gender is the quality of a noun or pronoun. In English, the feature of gender is in nouns tells us whether the person or thing named by a noun is male, female or non-living thing, non-living entity. मीन्स जेंडर है या तो मेल या फीमेल, लड़का या लड़की या कोई भी औरत या आदमी, इसको ये जब हम रिकग्नाइज करते हैं जो एक नाउन से, उसे जेंडर कहते हैं। जैसे हम कभी भी किसी से बात करते हैं या कोई भी सेंटेंस भी यूज़ करते हैं तो मदर, फादर, तो हम उसे समझ सकते हैं कि मदर यानी एक फीमेल है और फादर यानी एक मेल है। जेंडर से हम नाम से हम नाउन से पता कर सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि इट इज़ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। मैस्कुलाइन यानी मेल, फेमिनाइन यानी फीमेल। देयर आर four genders in the English language. How many genders are there? Four genders: masculine, feminine, common gender and neuter gender. Let's start with the first, masculine gender. What is masculine gender? A noun that denotes a male sex is said to be a masculine gender. जो मेल हो यानी आदमी हो या लड़का हो उसे masculine gender कहते हैं। masculine gender के examples है your father is a good man. Your father is a good man. Father is a male, man is a male. ये दो है masculine. These boys are handsome. These boys are handsome. Boys फिर से क्या है? Masculine. Father, man भी क्या है? Masculine है। और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं जैसे my son is going to school, या that boy is going to school, boy, son. The cock crows in the morning. अभी यहाँ cock क्या है? cock एक बर्ड है जो cock से मुर्गा इज अ मैस्कुलाइन, मेल है। और अगर उसकी फीमेल क्या रहती है? hen इज अ फेमिनाइन। तो the cock crows in the morning. Your father is a good man. These boys are handsome. Yeah. That boy is very good. इसी तरह next is feminine gender. What is feminine gender? अच्छा, masculine में in the above sentence feminine gender, a noun that denotes a female sex is said to be feminine gender. For example, means a noun जो denote करता है फीमेल सेक्स को यानी लेडी को, फीमेल को। तो उसमें एग्जाम्पल्स है योर मदर इज अ जेंटल लेडी, द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, योर मदर इज अ जेंटल लेडी, या फिर द गर्ल्स आर प्लेइंग, या फिर शी इज राइटिंग अ बुक, या शी नहीं तो नहीं, माई डॉटर इज स्टडिंग इन द स्कूल, if your mother is going to office, ऐसे मदर फादर जहाँ पे गर्ल्स हो। दिस hen lays an egg every day. This lays an egg every day. hen अभी यहाँ पे क्या है? hen is feminine क्योंकि hen है एक फीमेल है, फीमेल जेंडर की है वो, इसलिए फेमिनाइन। अगर है कॉक होता तो मैस्कुलाइन, hen है तो फेमिनाइन, इसलिए वो फेमिनाइन जेंडर में आता है। मदर, गर्ल्स, डॉटर, सिस्टर या वाइफ या कोई भी फीमेल जेंडर के नाउन में जो आएंगे वो है फेमिनाइन जेंडर। नाउ द थर्ड इज कॉमन जेंडर. नाउ इन दिस कॉमन जेंडर वी कैन बोथ फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन both will come in this common gender. Both the feminine and masculine, both the genders will come. A noun that is used both for males and females is said to be a common gender. For example,
your friend is very cooperative. Your friend is very cooperative. Friend, that friend can be a male or a female, anyone, or both of, or friends है तो both दोनों भी हो सकते हैं. इसलिए your friend is very cooperative. Some birds are flying in the air. Some birds are flying in the air. Now birds can be male also or female also. Anything. Birds can be male or female. So it is the common gender. इसके और examples. Some students are not attentive in the class. Some students are not attentive in the class. Now that students can be male or female, any masculine भी, girls भी हो सकते हैं, वो boys भी हो सकते हैं. तो इसलिए वो है common gender. Will your guest stay for few more days? Will your guest stay for few more days? यानी गेस्ट, अब उसमें गेस्ट कोई भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड अ कॉमन जेंडर. नेक्स्ट इज न्यूटर जेंडर. अ नाउन दैट इज यूज्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट और थिंग विदाउट लाइफ इज सेड टू बी अ न्यूटर जेंडर. अ नाउन दैट इज यूज्ड एज फॉर एन ऑब्जेक्ट और थिंग विच इज विदाउट लाइफ इज सेड टू बी अ न्यूटर जेंडर. यानी विदाउट लाइफ, जिसमें कोई जान नहीं हो, बेजान चीज़ों को हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं. ना वो मेल रहेगा ना फीमेल रहेगा, ना उसमें जान रहेगी. वो सिर्फ जैसे कि थिंग्स, जो चीज़ें हैं हमारे आसपास की, जो चीज़ें हैं थिंग्स, वो न्यूट्रल में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉक्स इज मेड ऑफ टिन. दिस बॉक्स इज मेड ऑफ टिन. बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स क्या है? ना मेल है ना फीमेल है, वो एक चीज है. एक बॉक्स बना है, उसका इसलिए कोई भी जेंडर नहीं है, इसलिए वो बॉक्स इज अ न्यूटर. देन हु हैज ब्रोकन दीज चेयर्स? हु हैज ब्रोकन दीज चेयर्स? यहाँ पे चेयर्स क्या है? न्यूटर. चेयर्स ना कॉमन है, ना कॉमन में आता है, ना मेल में आता है, ना फीमेल में आता है. चेयर्स न्यूटर, कोई चीज है नहीं, उसमें ना जान है, ना मेल में आएगा ना फीमेल आएगा, इसलिए न्यूटर. द फार्मर इज प्लाउइंग हिज फील्ड. द फार्मर इज प्लाउइंग हिज फील्ड. फील्ड यानी खेत. तो वो क्या है? एक चीज, जगह है, एक चीज है. मीन्स वहाँ पे ना मेल है ना फीमेल है, ना उसमें जान है. वो एक एरिया है. फील्ड यानी उनकी खेत एरिया है जहाँ पे फार्मिंग होती है. वेर आर योर बुक्स? वेर आर योर बुक्स? बुक्स क्या है? बुक्स भी एक न्यूटर है, नाइदर मैस्कुलाइन नॉर फेमिनाइन. In the above, these sentences are lifeless objects. These words which is lifeless objects. Books, बॉक्स, चेयर्स, फील्ड, ये सब क्या है? लाइफलेस, इनमें जान नहीं है. एंड दे आर सेड टू बी न्यूटर जेंडर. अब इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी दिए जाएंगे आपको. फॉर्मेशन हो सकता है, फॉर्मेशन के लिए मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर. जैसे कि अगर मैस्कुलाइन में ऑथर है तो फेमिनाइन में वो क्या हो जाएगा? ऑथरेस. अगर मैस्कुलाइन में है होस्ट तो उसका होस्टेस. लायन का लायनेस, पोएट का पोएटेस. ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 20 पे. यू कैन सी दिस. लायन का लायनेस, पोएट का पोएटेस, प्रीस्ट प्रीस्टेस, मास्टर मास्ट्रेस, गॉड गॉडेस, गवर्नर गवर्नेस. यानी मैस्कुलाइन में और फेमिनाइन में उससे कैसे चेंज किया जाता है? गवर्नर गवर्नेस, फेमिनाइन में गवर्नेस हो जाएगा. फिर यहाँ पे है बाय चेंजिंग जेंडर पार्ट ऑफ कंपाउंड नाउन. मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट. मैन सर्वेंट जो मैन है, आदमी, और जो औरत रहेगी तो मेड सर्वेंट हो जाएगी. वॉशर मैन, वॉशर वुमेन, मैन से वुमेन हो जाएगा. यहाँ मैन से मेड हो गई, जैसे वॉशर मैन, वॉशर वुमेन. बुल काफ, काव का. बुल इज अ
masculine and cow is a feminine. He bear, she bear. ही और शी, यहाँ पे बेर को कैसे दिया? ही और शी में दिया. He goat, she goat. A peacock, peahen. Peacock is a masculine. और peacock जो होते हैं बड़े बड़े वो masculine होते हैं, और इसकी जो फीमेल होती है उसे peahen कहते हैं. peahen. Landlord, landlady. Landlord आदमी होता है और landlady औरत. Grandfather का feminine है grandmother. इसी तरह बॉय का गर्ल, सन का डॉटर, फादर मदर, हस्बैंड वाइफ, अंकल आंट, नेफ्यू नीज, मैन वुमेन, सर मैडम, लॉर्ड लेडी, विडो विडोवर विडो, किंग क्वीन, मॉन्क नन, विजार्ड विच, फॉक्स विक्सन, कॉक हैन, हॉर्स मैर, बुल काव. ये सब मैस्कुलाइन के फेमिनाइन है. मीन्स एक मेल रहेगा तो एक फीमेल रहेगा. उसको अगर मेल किंग है तो फीमेल में क्या रहेगी? वो क्वीन है ना. अगर मेल फॉक्स है तो उसका फेमिनाइन रहेगा विक्सन. मेल कॉक है तो उसका फेमिनाइन रहेगा हैन. हॉर्स है तो मैर. ऐसे इसी तरह आपको ये पढ़ना है और याद करना है कि किसका कौन सा मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है. यू हैव टू लर्न दिस. ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड. ये जितने मैंने वर्ड्स बताए हैं आपको मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में जो चेंज करने के, यू हैव टू ऑल लर्न दिस. दिस कैन बी कम इन योर एग्जाम्स. सो यू शुड लर्न दिस. यू शुड मीन्स नो एवरी मैस्कुलाइन का फेमिनाइन क्या होगा. ये फेमिनाइन दिया जाएगा, आप उसका मैस्कुलाइन क्या होगा आपको ऐसे लर्न करके रखना है. ओके, होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस. एक बार फिर से बोल दूँ, काइंड्स ऑफ जेंडर कौन से हैं. काइंड ऑफ जेंडर है मैस्कुलाइन जेंडर, जिसमें मेल सेक्स वाले जितने होते हैं उनको मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं वो. जैसे कि फादर बॉयज़, ब्रदर या सन, कॉक या फॉक्स, ऐसे ये सब जो मेल में आते हैं. किंग, हॉर्स, बुल, मास्टर, लायन, ये सब किस में आते हैं? मेल मैस्कुलाइन में. फेमिनाइन इज अ फीमेल जेंडर, जो फीमेल होता है उससे फेमिनाइन कहते हैं. जैसे कि मदर, गर्ल्स, डॉटर, हैन, सिस्टर, या और कौन से क्वीन या hen, cow, poetess, lioness, princess, tigress, actress, grandmother, landlady, ये सब फेमिनाइन में आते हैं. नेक्स्ट है कॉमन जेंडर जिसमें दोनों भी आ सकते हैं. या तो फेमिनाइन भी हो सकता है या मैस्कुलाइन भी हो सकता है, लेकिन दोनों को इस्तेमाल किया गया है. जैसे कि बर्ड्स, स्टूडेंट्स, गेस्ट, फ्रेंड्स, ऐसे जो दोनों भी आ सकते हैं. और नेक्स्ट है न्यूटर जेंडर जिसमें जो लाइफलेस चीज़ें होती हैं, जैसे कि जिसमें लाइफ ना हो, जो कोई जान ना हो, ना वो मैस्कुलाइन में आता है, ना फेमिनाइन में आता है, ना कॉमन में आता है. जिसमें कोई जान ही ना हो, बस चीज़ों के लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं. जैसे कि बॉक्स, चेयर्स या टेबल या फील्ड, बुक्स, लाइक दिस. जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं अतराफ की, जिसमें जो लाइफ ना हो. ओके, होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस. नाउ ट्राई टू लर्न दिस वर्ड्स and try to understand this sub sentences. Okay, thank you.